Good afternoons, everyone. I am Nilesh Doshi. I am here from GBS Business Talk Show today, and today we have one more guest today, Dr. Purva Karandikar, and she is an audiologist and a speech language pathologist. Completed her education in Bachelor of and Master of Degree from Nair Hospital, Mumbai. She gained work experience from Hinduja Hospital, Nair Hospital, and Asian Hospital, Cancer Hospital. And she is a founder of Soundwell Speech and Hearing Clinic, and she had founded that clinic in 2015. They have two branch in Mumbai, one branch in Borivali, and also come up with an Sion also. So now she has a three branch, one at Villeparle, Borivali, and Sion. So today's guest is with me, Dr. Purva Karandikar. Hi, Dr. Purva. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Nilesh ji. Thank you for giving me this opportunity. Most welcome, ma'am. So there are a lot of viewers over here. Everyone is Digital Pallavi. Pallavi is also here. Nirav Photo Arts. So every Puneet is also here. So many Borivali platform members are to support you. And today we have some questions for you. There are a lot of viewers. So viewers have some questions as an audiologist and language pathologist. So first question, can you tell me about yourself first and about your clinic and where is your clinic in Mumbai and where you are going to give the service. And right now your clinic is started for the patient. So give me some brief about yourself first. Sure. So I'm an audiologist and speech language pathologist. So as an audiologist and speech language pathologist, हम जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए predominantly काम करते हैं और अलग अलग सुनाई देने के टेस्ट करते हैं. उनको कान की मशीन जो होती है हियरिंग एड वो प्रिस्क्राइब करते हैं. जिनको हियरिंग एड से फायदा नहीं होता है उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट भी प्रिस्क्राइब करते हैं. और जो बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है या जो बड़ों को बोलने में दिक्कत आती है उनके लिए स्पीच थेरेपी भी करते हैं. तो हमारा क्लिनिक जो है साउंडवेल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक वो विलेपार्ले और बोरिवली में है. अभी के सिचुएशन में विद प्रिकॉशंस ओनली इमरजेंसी केसेस हम ट्रीट कर रहे हैं या जो हमारे से हियरिंग एड्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उनको बैटरीज चाहिए और अलग अलग एक्सेसरीज चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और एकदम इमरजेंसी हो किसी टेस्टिंग के लिए तो ही हम विद प्रोटेक्शन पीपी फेस शील्ड एंड जो जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स ही देख रहे हैं पार्ट टाइम. सो कोई भी अगर इमरजेंसी पेशेंट है उसके लिए आप क्लिनिक जाते हो या आप उनके एट होम सर्विस दे रहे हो या आप अपने घर पे बुला रहे हो कि क्लिनिक आपका ओपन हो चुका है? यस, क्लिनिक ओपन होता है फॉर 2 आवर्स और व्हाटएवर अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही हम जाते हैं. पेशेंट के यूजुअली हमको कांटेक्ट करते हैं तो हम टाइम फिक्स करते हैं पेशेंट के साथ. तो मिनिमम कांटेक्ट रहे पर पेशेंट का काम भी हो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं. Okay. So how many years of experience in this field and आपकी क्लिनिक का नाम क्या है और you are the co-founder, you as you said. Yes. So give me the details of your another founder also and their details. So I started speech and hearing clinic along with my batchmate Bijal Rana and my husband Yagyadat Samal in 2015. So we completed 5 years this May. We have 2 time branches in Villeparle and Borivali. West, and we have one part-time branch in Sion Ghatkopar area. Okay, so means आपने central और western दोनों cover कर लिया है. And I started practicing right from 2011, so it's almost 9 years now that I've been practicing in this field. Okay. So particularly आप जो you are the founder of this Soundwell Speech Clinic. So आपका basically जो we are ये पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों लोगों के लिए मतलब ज्यादा रहता है या सीनियर सिटीजन के लिए होता है या एनी एज ग्रुप होता है कि दोनों के लिए होता है. 60 इयर्स के बाद यूजुअली क्या होता है कि सुनाई देने का जो प्रॉब्लम है वो 60 इयर्स के बाद नेचुरली सब लोगों को होना चालू होता है. तो
60 इयर्स के बाद के पेशेंट ज्यादा फॉर हियरिंग एड के लिए, तो उनके लिए हियरिंग टेस्ट करना, हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करना, तो वो अडल्ट सेक्शन बन जाता है। या जिनको वॉइस की तकलीफ है, या जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रोक आया हुआ है या पार्किंसंस है, ऐसे केसेस के लिए हम अडल्ट्स के लिए भी स्पीच थेरेपी करते हैं। और ओके। बच्चों के लिए जो उम्र के हिसाब से बोल नहीं पाते, तोतला बोलते हैं या स्टैमर करते हैं, वो सारे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी होता है। ओके, सो आप उसको पर्सनली आप उसको हैंडल करती है या आपके असिस्टेंट ग्रुप तो है या? ओके। हमारी टीम है, सो हम तो है ही, प्लस हमारे कंसल्टिंग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी है क्लिनिक में, तो हम ओके। 4 जन है, तो जिसके साथ स्लॉट मैच होता है, क्योंकि बच्चों का भी स्केड्यूल काफी बिजी रहता है आजकल, तो उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। एंड हमारी अपनी अपनी स्पेशलिटी भी है, जैसे बीजल ज्यादा पीडियाट्रिक स्पीच लैंग्वेज डिलेस के साथ केसेस हैंडल करती है, या मैं ज्यादा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या कॉक्लियर इम्प्लांट वाले जो बच्चे हैं उनको ज्यादा हैंडल करती हूँ। तो आपके लाइफ में कौन सा क्रिटिकल केस आया हुआ है जो आपने बहुत अच्छे से सेट आउट किया है उसका, और उसका तो 110% बोल सकते हैं रिजल्ट है, जिसके लिए रिकमेंडेशन भी आपको मिला हो या कोई टेस्टिमनी मिली हो? ऐसा कोई एक हो या ज्यादा भी हो सकता है। आई डोंट नो बिकॉज यू आर इन सच ए तो 9 years यू आर इन दिस फील्ड, सो ज्यादा भी हो सकते हैं, पर वर्स्ट केस कौन सा था और सबसे बेस्ट होके वो निकला हो, वैसा कोई एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हो तो? मैं वर्स्ट ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर केस हमको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। ओके। बट स्पेशली जब लोगों को निगलने की तकलीफ होती है, जैसे मैं हॉस्पिटल सेटअप्स में काम करती थी एंड अभी भी हॉस्पिटल सेटअप से जुड़ी हुई हूँ रामकृष्ण मिशन में, तो जब कोई रायल्स ट्यूब पे होता है, यानी नाक से जो नली जाती है, एंड वो केसेस को जब हम सॉलोइंग एक्सरसाइजेस देते हैं और वो निगलना चालू करते हैं और खुद का खाना खाना चालू करते हैं, तो एक अलग सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है। वो एक चीज है। एंड दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं कॉक्लियर इम्प्लांट रिहैबिलिटेशन से काफी जुड़ी हुई हूँ, तो जब स्विच ऑन करते हैं और फर्स्ट टाइम जब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के द्वारा सुनाई देता है बच्चे को, तो उनका रिएक्शन देखना फील अच्छी हो। डेफिनेटली हमारे लिए एक अगेन एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस एक रहता बार है वो। आपको पिक्चर थी शोर करके, तो आई 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 कैन रिकलेक्ट दैट सीन आल्सो। यस। एंड अच्छा। डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड्स, सब बच्चों के फर्स्ट वर्ड्स जब आते हैं, तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं कि वो कम्युनिकेट करना चालू कर दिए हैं करके। तो वो माँ आता है या डॉक्टर आता है? जनरली माँ आता है, डॉक्टर तो नहीं आता है। ओके ओके, क्योंकि डॉक्टर का नाम पता नहीं होता। ओके, एनीवे, बट इट्स वेरी गुड जॉब बिकॉज बच्चों को बोलना स्टार्ट कराना, इट्स रियली हेड्स ऑफ यू। सब मोर क्वेश्चंस ये कि आपने अभी रामकृष्ण मिशन का नाम लिया, तो आप कोई करेक्ट। सोशल एक्टिविटी से भी कनेक्टेड हो, सो वो भी हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से सोशल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो और कहाँ कहाँ जाते हो, और जहाँ पर जैसे कि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम द ट्रस्ट, ट्रस्ट से भी आपके थ्रू करेक्ट। बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर तो आप उस पर गाइड करें तो हम अपने व्यूअर्स को भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास अगर सी लो इनकम है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, वो लोग शायद अगर वहां के थ्रू आपके पास यूजुअली कनेक्ट। ऐसे केसेस को हियरिंग एड जब लगता है, तब हम क्लिनिक के थ्रू कुछ ट्रस्ट में भेजते हैं, ताकि उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो है, मीनिंग ऐसा नहीं है कि कोई अगर लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इवन स्पीच थेरेपी के लिए अगर कोई नहीं आता है, मीनिंग किसी को अगर पैसे की दिक्कत है, तो उनके लिए भी हम कंसेशंस देते हैं, बिकॉज ओके, अल्टीमेटली वी आर हियर टू सर्व पीपल। तो डॉक्टर पास। पैसा सब कुछ नहीं होता है, सो एज फार एज आई पॉसिबल वी अंडरस्टैंड। मेक श्योर दैट ऑल पेशेंट्स आर केटर्ड टू। ओके। सो रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल से तो मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां पे कंसेशनल रेट पे सब टेस्टिंग वगैरह होता है। एंड इवन महावीर इंटरनेशनल करके एक फाउंडेशन है, उनका हर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मेडिकल कैंप होता है सांता क्रूज वेस्ट में। वहां पे भी ऑलमोस्ट लास्ट 2 इयर्स से हम वो मेडिकल कैंप में जाके सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे भी फ्री टेस्टिंग होता है। आई नो 2-3 ट्रस्ट ऑल्सो टू whom you want to connect, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उनके डॉक्टर से भी आपको कनेक्ट करा सकता हूँ। नॉट श्योर एवरी सर। वीक, आप एटलीस्ट मंथ में एक बार भी अगर वहाँ जाके, अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप वहाँ पर ट्रस्ट में जाके किसी को हेल्प कर सकते हैं।
और दोनों तरफ से आपको उनकी डॉक्टर्स, अदर डॉक्टर्स से भी आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, और देन देयर ऑल्सो a lower middle class people can get an opportunity to get the benefit from your expertise. श्योर सर, ओके, श्योर सर। सो आपने अभी एक किट की बात की, हियरिंग किट की बात की, बराबर है? सो यस। आई बिलीव दैट सबसे बेस्ट ब्रांड अकॉर्डिंग टू यू, इम्पोर्टेड है, इंडियन है, या कोई भी है, तो विच इज द बेस्ट ईयर एड किट जो आप बोल रहे हो, वो सबसे तो बेस्ट कंपनी कौन सी है अकॉर्डिंग टू यू? ह्योरिंग एड्स जो होती है ना, उसमें से कोई बेस्ट कंपनी या बेस्ट बेस्ट ब्रांड नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि ओके। सारी की सारी इम्पोर्टेड होती है। सब मशीन्स पे, सब ह्योरिंग एड्स पे 2 इयर्स की वारंटी देता है वो। मैं ओके। हमेशा पेशेंट को एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी फैमिली है 4 लोगों की, आप सब टीवी देखते हो, राइट? राइट। जब आप टीवी देखते हो तो सब जन एक ही वॉल्यूम नहीं सेट करता है। कोई 15 ओके। पे रखेगा, कोई 16 पे रखेगा, कोई 17 पे रखेगा। तो सेम है कि अपना अपना हियरिंग लॉस अलग होता है, अपनी अपनी ओके। ऑडिटरी सिस्टम अलग होती है। सो हम क्लिनिक में टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी का मशीन पेशेंट को सूट करता है। सो ओके। हमारी क्लिनिक में ऐसा नहीं है कि वन ब्रांड क्लिनिक नहीं है, इट्स अ मल्टी ब्रांड क्लिनिक। हमारा फोकस हमेशा पेशेंट एंड पेशेंट बेनिफिट पे रहता है। सो वेरी वी गुड। चेक इट, वी गिव अ हियरिंग एड ट्रायल, एंड ट्रायल बेनिफिट करने के बाद ही हम हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके। तो ओके, तो बिकॉज आप ऑल उसको आर भी अच्छे इंटरनेशनल दोगे? ब्रांड्स क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोर ओके। इम्पोर्टेंट इज व्हाट सूट्स द पेशेंट। ओके, तो आप उनको ट्रायल के लिए भी पहले वो किट देते हो, कितने टाइम के लिए? एड सर, एड हम क्लिनिक में भी ट्रायल करते हैं, और अभी ओके। तो लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है, बट बिफोर लॉकडाउन हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के 3 डेज या 7 डेज की होम ट्रायल भी देते थे हियरिंग एड्स की, ताकि पेशेंट भी श्योर हो कि उसके डेली कम्युनिकेशन में भी उसको बेनिफिट मिल रहा है। आपने अभी लॉकडाउन की बात की, तो बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट ऑनलाइन देते हैं, और आपकी करेक्ट। जो स्पीच थेरेपी एंड साउंड थेरेपी जो है, आप ऑनलाइन करते हो, या के इन योर केस इट इज नॉट पॉसिबल? नहीं, स्पीच थेरेपी हम सर डेफिनेटली ऑनलाइन करते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस चालू है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो जाएगा अगर हम नहीं करते हैं तो। एंड जब हम फिजिकली वापस आएंगे तो हमारे गोल्स रहते हैं, जैसे हम ओके। चाहते हैं कि सब बच्चे एज अप्रोप्रिएटली बातचीत करना स्टार्ट करें। तो ओके। एक टारगेट लेके काम करते हैं, एक असेसमेंट्स होती है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है वैसे ही स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की टेस्ट होती है। तो टेस्ट ओके। के हिसाब से नापते हैं कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और हम कितना एज अप्रोप्रिएट बच्चों को या जो अडल्ट है उनका प्रॉब्लम कितना सॉल्व होके कितना नॉर्मलसी के करीब ला रहा है। ओके, तो मतलब आपका सर एक ऑनलाइन भी? क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आंसर करूं? ऑडियंस हाँ, में से या दो प्लीज क्वेश्चन प्लीज। दिख रहे हैं। या। सो यहाँ पे एक जन ने पूछा है कि माय डैड हैज हियरिंग इशू आफ्टर द एज ऑफ 65, सो हाउ कैन आई सॉल्व हिज हियरिंग प्रॉब्लम? तो मैं उनको बोलूंगी कि पहले तो हियरिंग टेस्ट करनी पड़ती है, जिसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। एंड ऑडियोमेट्री टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर नर्व लॉस है या सेंसरी न्यूरल जिसको हम बोलते हैं उसकी तकलीफ है, तो हम हियरिंग एड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर बीच के कान की यानी मिडिल ईयर के इशू है तो हम ईएनटी को रेफर करेंगे। एंड लाइक आई सेड कि पेशेंट जब आता है तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको किस मशीन से ज्यादा एड से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो हम पहले टेस्ट करते हैं और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड ओके। सेकेंड क्वेश्चन अपूर्वा जी ने पूछा है कि विल ओके। recommend every new mom to get her newborns hearing tested, and is it possible to test hearing in newborns? Is it invasive or painful for the newborn? Very interesting question अपूर्वा, थैंक यू पूछने के लिए। बच्चे जो है वो पेट में 4th मंथ से सुनना चालू करते हैं। तो जब पैदा होता है तो फर्स्ट डे पे हम डेफिनेटली उनका टेस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो टेस्ट होता है वो नॉन इन्वेजिव, नॉन पेनफुल रहता है। मीनिंग हम सिर्फ हेडफोन, जैसे अभी मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं उसी तरीके के हेडफोन्स हम पहनते हैं, और कान में कुछ आवाजें देके उनका एको नापते हैं, उसको ओएई टेस्टिंग बोलते हैं। तो ओएई स्क्रीनिंग से इवन हल्की से हल्की अगर हियरिंग की प्रॉब्लम है तो पता चलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो सुनना भी बढ़ता है, तो वैसा नहीं है। पैदा जब होते हैं तब फुल हियरिंग पावर के साथ हम पैदा होते हैं। स्पीच हमारी लेट स्टार्ट होती है, पहले सुनते हैं फिर बोलना सीखते हैं। ओके, सो आपके स्क्रीन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज ए डॉक्टर आपके स्क्रीन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे को भी आया हुआ है यहाँ पर,
कि बच्चा अगर कितनी एज में अगर नहीं बोलना सीखता है तो आपको रेफर करना चाहिए, तो वो एक तो क्वेश्चन है यहाँ पर। बच्चा अपनी उम्र से 6 महीने के पीछे चल रहा है तो रेफर करना चाहिए, मीनिंग बहुत बार क्या होता है कि हमको पता चलता है, हम सोचते हैं कि 3 साल में बोलता है, 5 साल में, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे बच्चे के हम मोटर माइलस्टोन्स देखते हैं, यानी रेंगना चालू करता है, फिर पकड़ के चलना चालू करता है, फिर दौड़ना चालू करता है, वैसे ही बोलने में फर्स्ट ईयर 1 साल का बच्चा एक एक वर्ड में बोलता है, 2 साल का बच्चा 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन करना चाहिए, और 3 साल तक एक पूरी स्टोरी नरेट करने को आनी चाहिए। स्टोरी इन द सेंस एक कोई भी इवेंट हो अपने तरीके से, छोटे छोटे सेंटेंसेस में क्यों ना हो, बट सीक्वेंस में बोलने को आना चाहिए। जैसे मैं स्कूल गया, फिर वो मेरा फ्रेंड गिरा तो वो रोने लगा, फिर टीचर ने उसको उठाया, तो छोटे सेंटेंसेस है, बट एक के पीछे एक वो बोलना चालू कर देते हैं, तो वो एक 3 से 4 3 साल की उम्र तक एटलीस्ट इतना करने को आना चाहिए। ओके। एंड अगर ये कहीं पे भी बर्थडे सिंपल है, बर्थडे जितना है उतने वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने को आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो यू शुड गो एंड सी अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वी कैन ये हेल्प यू आउट। ये आज हमें नया मिला कि 1 साल का बच्चा है तो सिंगल वर्ड, 2 साल का बच्चा है तो 2 वर्ड्स, एंड 3 साल के ऊपर का है तो एटलीस्ट एक पूरा सेंटेंस देना होना चाहिए। बट इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल थिंग। और एक चीज और एक स्क्रीन पे आ रही है, वो खाली एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि माय मदर हैज एन हियरिंग लॉस एंड यूसेज इज, उसके पास खुद के पास एक हियरिंग एड किट है। सो वी ओके। आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द लॉकडाउन, लॉकडाउन में वो बैटरी का इश्यूज आ रहा है उसको। सो ओके। डू यू डॉक्टर हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट कि वो बैटरी प्रोवाइड कर सकते हैं या कुछ मशीन करेक्ट। प्रॉपर है या नहीं है, तो उनको वो दिक्कत हो रही है लॉकडाउन में, तो वो क्वेश्चन भी आ रहा है। सो दो चार चीजें हैं सर, कि एक तो बैटरीज अभी हमारे दोनों क्लिनिक में अवेलेबल है, विलेपार्ले में, बोरिवली में, पेशेंट पिकअप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि रिचार्जेबल हियरिंग एड की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ओके। मे बी पोस्ट लॉकडाउन जब उठ जाएगा तो दे कैन अपग्रेड टू अ रिचार्जेबल हियरिंग एड, जहाँ पे आप 3 घंटा हियरिंग एड चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स वर्किंग, यानी 1.5 दिन तक वो बैटरी चलती रहती है, एंड इट्स अ पोर्टेबल चार्जर। नॉर्मल अपना मोबाइल का चार्जर होता है उस तरीके का केस आता है, और उसमें यूएसबी कनेक्शन रहता है। सो वो एक चीज बहुत अच्छे से। और दूसरा आपने बोला पावर के बारे में, मीनिंग हाँ। मशीन सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यस कभी यस। क्या होता है कि ऑडियोग्राम के अकॉर्डिंगली हम पावर सेट करते हैं मशीन में। ऐसा नहीं कि इन्होंने हियरिंग एड खरीदा और उनका हियरिंग एड मैं लगाऊं तो वैसे वो वर्क नहीं करता है। मेरी हियरिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग वो सेट करना पड़ता है, तो कभी कभार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है पेशेंट के परसेप्शन के हिसाब से। तो ऐसी भी कुछ हियरिंग एड कंपनी है, स्पेशली अभी फोनैक का नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रहा है लॉकडाउन के लिए, कि जहाँ पे मैं घर बैठे पेशेंट का हियरिंग एड उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट करूँ और मैं यहाँ से उसका पावर सेटिंग चेंज करूँ। ओ, तो ग्रेट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। चीजों के हिसाब से, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड एक ऑप्शन है। एंड बैटरीज फिलहाल के लिए तो सारी जो 675 है, P10 है, P13 है और P312 है, ये सारी बैटरीज अवेलेबल है क्लिनिक में। तो ये जो इयरिंग एड किट होती है, उसकी एक एवरेज कॉस्ट क्या होती है? तो हियरिंग एड्स अगर डिजिटल की ही मैं बात करूंगी, जो हाँ हाँ। जहाँ पे शोर कम होता है और स्पीच पे हम जोर देके, मीनिंग जब मैं मशीन लगाती हूँ तो फैन की आवाज भी उतनी ही जोर से आए और मेरी आवाज भी उतनी जोर से आए, तो फायदा क्या है मशीन का? बराबर है मुझे हाँ। बैकग्राउंड कम आनी चाहिए और स्पीच की आवाज ज्यादा क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। मतलब तो नॉर्मल, एक नॉर्मल जो अपन एक दूसरे से बात करते हैं वही वही टोन में होना चाहिए। ओके। करेक्ट, मीनिंग ईयर का फंक्शन मिमिक होना चाहिए। हम ओके। एक हाथ लाउड पार्टी में अगर जाते हैं तो फर्स्ट 10 मिनट्स बहुत लाउड लगता है, एंड यस। देन आवाज तो कम नहीं होती है, बट फिर हम यूज टू हो एडजस्ट जाता हो है, जाते। यूज टू हो करेक्ट। जाता तो ये सारी हियरिंग की जो फंक्शंस है अपनी, वो सारी मिमिक करने वाला हियरिंग एड होना चाहिए। तो जो डिजिटल हियरिंग एड्स आती है उनमें ये बेसिक क्वालिटीज आती है। तो बेसिक डिजिटल एड 15,000 से शुरू होता है, जाने के लिए 3.5 लाख तक भी जाता है। है। ओहो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, एज क्या है, कम्युनिकेशन नीड क्या है। कोई एमडी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, राउंड टेबल मीटिंग्स रहती है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनका रिक्वायरमेंट अलग होता है वर्सेस कोई हाउसवाइफ है,
मैक्सिमम मंदिर में जाते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट अलग है। सो एज एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको हियरिंग एड हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मीनिंग फिर बजट डिसाइड होता है कि क्या रेंज में यस ये होता है। दूसरा, इसी फॉलोअप क्वेश्चन आया है कि आर फॉलोअप्स विद ऑडियोलॉजिस्ट एट रेगुलर इंटरवल नीडेड इफ द हियरिंग एड इज वर्किंग प्रॉपर्ली टू द पेशेंट। अगर मशीन अच्छे से चालू है तो हम बार बार फॉलोअप के लिए नहीं बुलाते हैं, बट डेफिनेटली 2 ईयर की वारंटी रहती है, तो वारंटी खत्म होने से पहले हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कि एक बार हियरिंग एड सर्विस किया जाए। तो हमारे क्लिनिक से हम यूजुअली फॉलोअप कॉल देते हैं कि एक बार सर्विस कर दो करके। ओके, तो सर्विस बैकअप और आफ्टर सेल सर्विस भी आपकी तरफ से प्रोवाइड हो। ओके, ग्रेट। सो आपके पास और कुछ किसी ऑडियंस के लिए बताने के लिए कुछ भी हो क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे, तो हम लोग ने एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कस किए। करेक्ट। सो अगर आपके पास और भी that there is such a live audience who's asking questions. Thank you everyone for commenting and asking questions. हाँ, so that is the only thank you part. और any offer from your end लॉकडाउन में कुछ अगर आप अपने ऑडियंस को कुछ एक ऑफर देना चाहते हो या कुछ एक सजेशन देना चाहते हो। और सेकंड पार्ट, जैसा आपने बोला वारंटी पार्ट रहती है, तो 2 साल के बाद ये किट चेंज करनी होती है या कैसे होता है, मतलब उसमें? यूजुअली अगर आप केयर एंड मेंटेनेंस हियरिंग एड का बराबर करते हो तो ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स आराम से पेशेंट यूज कर सकता है। इट्स ओनली व्हेन रिपेयर कॉस्ट ज्यादा आने लगे तब आप सोच सकते हो अपग्रेड करने के लिए। एंड सेकेंडली, ये आपका हियरिंग है, हम फोन हर 1.5 साल में अपग्रेड करते हैं, तो अपना हियरिंग सिस्टम क्यों नहीं अपग्रेड करना है? तो ऐसा नहीं है कि हर 2 साल में अपग्रेड करने की जरूरत है, बट आफ्टर 4 to 5 years डेफिनेटली वन शुड थिंक अबाउट अपग्रेडिंग, क्योंकि अपना ही सिस्टम बेटर होने वाला है, टेक्नोलॉजी तो आती रहती है। बराबर। So this is all questions from your end. Purva, you are with GBS Business Networking from such a long time. I think almost 1 year you had completed. You had done. You are going with the second year. So आपने GBS के बारे में कहाँ सुना था, कैसे आपने एंट्री लिया, और आप GBS के साथ में आपका 1 साल कैसा रहा, और आगे आपका GBS के साथ में आपका विजन क्या है कि आप GBS के थ्रू कैसे आगे बढ़ेंगे, और आपका एक स्ट्रेटेजी होता है कि अगर हाउ कैन वी हेल्प ईच अदर टू, जो अपना GBS का है कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोइंग टुगेदर। सो ऑल डॉक्टर, मेनी डॉक्टर्स आर आल्सो एसोसिएट, वन ऑफ यू आर द डॉक्टर ऑन GBS। सो आपका पूरा जो जर्नी है, जो स्टार्ट टू एंड व्हेन यू एंटर इनटू द GBS फर्स्ट मीट टू टिल डेट, वो कैसा रहा, एक आपको खाली एक बहुत छोटे से फॉर्म में आप बता सकते हो? श्योर। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, मुझे GBS इंट्रोड्यूस किया था मेरे एक पेशेंट के पेरेंट ने, सेइंग दैट मैडम आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू तो क्लिनिक आपका चलता ही है, आप सोशल नेटवर्क मीनिंग डिजिटल मार्केट में भी अवेयरनेस है आपका, बट आपको नेटवर्किंग ट्राई करना चाहिए। तो एज अ गेस्ट उन्होंने हमको वेंडर्स डे पे बुलाया, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द होल आइडिया। सेकंड, so we joined in on the same day, and GBS has given me a lot of opportunities to create awareness for my field. It has also increased my confidence in conducting lectures and presentations, and overall बाहर जाके लोगों को एक अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना, अप्रोच करना, ये मैंने GBS से बहुत अच्छे से सीखा है, एंड आई एम हैप्पी विद द प्लेटफॉर्म। सो आई होप दिस कंटिन्यूएशन keeps on going further and further. ओके, सो अभी आपका GBS के साथ में अगला 1 साल जो है 2020, तो काफी लोगों का खराब गया है। 20 के अगर GBS वाले का तो कहीं नहीं गया हुआ है, फिर भी अगर बहुत लोगों का ड्यू टू कोरोना 1-2-2.5 महीना जो है, और लॉकडाउन में काफी लोगों को ये दिक्कत हुई है। सो आगे आपका विजन GBS के साथ में क्या रहेगा? So विजन अभी के लिए यही है, टू स्टेबलाइज, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में है तो इनको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ होगा, तो ऐसे नहीं है। हमारे भी क्लिनिक्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए 2 मंथ्स के लिए अभी बंद है, तो ऐसा नहीं, मीनिंग वी आर ऑल्सो इन द सेम स्टॉर्म, स्ट्रगलिंग इन अ डिफरेंट मैनर। So the vision is the same, like I just want to continue, grow my business, grow my network. Thank you. और एक क्वेश्चन और नीचे आ रहा है आपके लिए, आप ऑडियो, अपना जो ऑडियो का जो ये ऑडियोलॉजिस्ट जो है उसकी ट्रेनिंग आप देते हो क्या? तो ऑडियोलॉजी का ट्रेनिंग नहीं होता है,
ऑडियोलॉजी का प्रॉपर कोर्स होता है। सो ट्वेल्थ ओके। में आपको साइंस लेना पड़ता है, साइंस के साथ अभी नीट की एग्जाम देनी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायो या मैथ्स में ऑप्शन रहता है। ये 4 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स का सेमेस्टर सिस्टम है इनफैक्ट अभी। एंड ये कोर्स इक्विवेलेंट है। सो आप अगर यूएस जाते हो या और किसी कंट्री में जाते हो तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, मीनिंग it's very easy to convert your degree to their equivalents and start practicing over there. So it's a 4 year course. मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स नायर हॉस्पिटल में किया है और वहां पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी काम कर रही थी। So it's a huge, meaning there is a huge opportunity if you want to get into this field. ओके। सो आप अब तक कितने बच्चों को और कितने सीनियर सिटीजन को कवर अप कर चुके हैं? Oh my God, ये नंबर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर क्लिनिक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वी मस्ट हैव टच्ड around 500 adult patients for sure, and we must be having around 60 to 70 on and off speech therapy. Speech therapy का rolling patient रहता है, meaning बच्चे आते हैं डिस्चार्ज होते हैं, नए आते हैं डिस्चार्ज होते हैं। So on an average on a given time we have 60 cases to go. Okay. And cochlear implant program में लगभग 15 बच्चे हैं अभी। और आपका अगर आपके उधर क्लिनिक में विजिट करना है या जैसे सायन में है, विले पार्ले में या बोरीवली में, तो प्री अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आपके पास, या आपके जैसे ओपीडी के जैसे वॉक इन भी आ सकते हैं आपके पास? हाँ, we don't recommend walk-in simply because even speech therapy का जो सेशन रहता है वो 45 मिनट्स का रहता है। अगर कोई हियरिंग एड ट्रायल के लिए आता है या तो टेस्टिंग के लिए आधा घंटा करना पड़ता है, और ट्रायल के लिए अनदर 45 मिनट्स जा सकता है। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो आप अगर वॉक इन आते हो तो एंडलेसली वेट करना पड़ता है। सो वी रेकमेंड कि प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ आए। ये कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी, साउंडवेल क्लिनिक का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उस पे अगर पिंग करते हैं तो मैं डिटेल्स दे दूंगी, टेलीफोन नंबर क्लिनिक का। और वन मोर क्वेश्चन के सी वी आर आल्सो एसोसिएट विद मेनी ट्रस्ट एंड वेरी मेनी सोशल एक्टिविटीज, so there are lot of senior citizens. So after lockdown अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक आप सेशन लो, कोई भी एक जगह पर हम लोग अरेंज करते हैं, प्रॉब्ली अगर अंधेरी टू कांदीवली सब कोई भी एक सेशन अटेंड करते हैं, तो वी आर रेडी टू अरेंज वन बैंक्वेट और वन सोशल प्लेस वेयर यू कैन कंडक्ट द, और एक डेट नक्की करते हैं, और उस दिन अगर आप जितने भी सीनियर सिटीजन है, मोस्ट ऑफ आफ्टर द लॉकडाउन में अभी सीनियर सिटीजन बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मैं उनके लिए एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है और बाकी गवर्नमेंट नॉर्म से 65 के ऊपर वाले को बाहर निकलना मना है। बट इन फ्यूचर आफ्टर 2-3 मंथ्स सो हम एक सेशन रख सकते हैं जहां पर आप सबको गाइड करें कि वी आर नॉट हियर टू सेल दिस ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन, बट डेफिनेटली यू कैन गाइड टू द सीनियर सिटीजन जिसके पास नहीं है और उनको बाय करना चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी है और वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो आप उनको थोड़ा गाइड कर सकते हो। तो ऐसा एक सेशन हम अरेंज कर सकते हैं, तो आप एक टाइम दे सकते हो तो कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, यूजुअली मैं वही रेकमेंड करती हूँ कि सी थ्रू जीबीएस और एनी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट सीकिंग आउट पेशेंट्स हियर, आई एम सीकिंग अवेयरनेस। जितने लोगों को ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के बारे में पता चले, प्रॉपर हियरिंग का केयर कैसे करना है, और अगर हियरिंग लॉस हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी लेनी है। बहुत बार हियरिंग लॉस जो है ना वो हिडन होता है सर, दिखता नहीं किसी को कि मुझे कम सुनाई देता है, और मैं थोड़ा 60 प्लस होऊंगा तो मैं गेस वर्क भी करके काम चला सकता हूँ, तो या सामने वाला थोड़ा चिल्ला के बात करे तो भी काम चल जाता है। तो ये हिडन लॉस होने की वजह से इवन बच्चे भी जब तक बोलते नहीं है, माँ बाप को पता नहीं चलता कि शायद ये सुन नहीं रहा हो, अनटिल एंड अनलेस बहुत सिवियर प्रॉब्लम है और पता चलता है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो इसके बारे में जितना अवेयरनेस हम क्रिएट करें उतना कम है। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो ऐसा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रैप दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ। जो व्यूअर्स यहाँ पर सुन रहे हैं हमारा कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर पूर्वा, उसको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन हो और एक एडवाइस, अगर एक कंसल्टिंग आपको लेनी है जो एक्सपर्ट डॉक्टर पूर्वा से रिगार्डिंग योर स्पीच एंड रिगार्डिंग योर साउंड रिलेटेड थिंग, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। हम लोग अंधेरी टू बोरीवली के बीच में एक सेक्शन रखने की कोशिश करेंगे,
जहाँ पूर्वा मैम और उनके co-founder दोनों जन साथ में आके they will guide you properly in a proper way. See, this is not a campaign at all, a sales campaign or anything. That is an absolutely awareness campaign. So they are ready to give their service on a honorary basis. So please do contact us. If you want to contact, आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9769220001. I'll repeat 9769220001. After the lockdown or after with the government norms, 65 years के ऊपर वाले को अगर किसी को भी अगर ये सेशन अटेंड करना है with the permission of government and with the permission of all entire as per the our country norms, so definitely we are going to attend conduct one session with the Purva Karandikar and his co-founder. So प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस एंड गेट द, आपको वहां से कुछ खरीदना नहीं है, आपको वहां से कुछ सेल्स फोर्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. डेफिनेटली यू विल गेट ए बेटर गाइडेंस, जिसको बोलते हैं सेकंड ओपिनियन. तो आप कहीं से भी अगर आप ले रहे हो तो आपको एक सेकंड ओपिनियन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस एंड डेफिनेटली यू विल. हाँ, इन बिटवीन अगर आपको इन बिटवीन जहाँ से अपना सेशन होने वाला है उसके बीच में भी अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो और अगर आपको उनके थ्रू कोई एक कंसल्टेंट लेना है, कॉल पे लेना है या फोन पे लेना है या गाइडेंस लेना है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो. वी विल फॉरवर्ड आवर नंबर टू यू एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हर. आप एक अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हो और शी विल गिव यू 100% बेटर गाइडेंस. इसको बोलते हैं सेकंड ओपिनियन. सो प्लीज नोट डाउन माई नंबर. आई अगेन रिपीट माई नंबर 9769220001. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पूर्वा मैम, मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अपने व्यूअर्स बॉम्बे में है वो तो हमें कनेक्ट कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं और काफी बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली ये जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, बट वहाँ पर इट्स ओनली नॉट बिजनेस, इट्स इन बॉन्डिंग और इट्स ए पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस भी वहाँ पर मिलता है. और वी आर ऑल्सो ऑन ईच एंड एवरी सोशल मीडिया. टुडे वी आर ऑन इंस्टाग्राम, we are on the LinkedIn also, we are on the Facebook also, we are on each and every social media. So those who are not from Mumbai और मुंबई के बाहर से है और हमारे कोई भी रजिस्टर्ड मेंबर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो www.gbsbusinessnetworking.com. I'll repeat www.gbsbusinessnetworking.com. It's absolutely free. Any entrepreneur can or any business owner can join us. It's absolutely free and you will get an opportunity to connect with our entrepreneurs from Mumbai and various professionals from the Mumbais. So we have more than 1500 entrepreneurs and the professionals are on the platform. So please do join us. It's an opportunity for entire India. जैसे बोलते हैं वोकल को लोकल और डेफिनेटली मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट. तो जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग इज अ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट and all the Indians are invited on this particular portal. Thank you so much Purva ma'am to being with us. It's an honor आज आप हमारे साथ में अपना टाइम देके आए. It's a privilege to us on the GBS Business Networking. The pleasure is all mine. और आपका नंबर और GBS नेटवर्किंग की वेबसाइट मैंने कमेंट पे डाल दी है. So जो देख रहे हैं they can go down on the comments and scroll through it. Thank you. Definitely. All the best and do well in the future and definitely keep doing a social work and all the best. You are I think very young, so you have a great future ahead and definitely we are together, so definitely we grow together. Thank you so much. Thank you, sir. Once again, thank you so much. My audience and Dr. Purva Karandikar. Thank you so much. Bye. Thank you.